Hello and welcome to another episode of Law MCQs of Drishti Judiciary. Let's begin. Admissions under Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 are covered under which part of the Act? Part 2, Part 3, Part 1 और Part 4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत स्वीकृतियां किस भाग में शामिल है? भाग 2, भाग 3, भाग 1 या भाग 4? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पार्ट 2. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 2. Admissions are covered under Part 2 specifically from Section 15 to Section 21 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. Admission is defined under Section 15 of BSA as a statement made by witnesses which shows inference to any fact in issue or relevant fact in a case. स्वीकृतियां भाग 2 के तहत शामिल है, विशेष रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 15 से धारा 21 तक. स्वीकृति को BSA की धारा 15 के तहत परिभाषित किया गया है जो गवाहों द्वारा की गई एक ऐसे बयान को दर्शाता है जो किसी मुद्दे या मामले में प्रासंगिक तथ्य का संकेत करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which chapter of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 deals with organized crimes? Chapter 4, Chapter 5, Chapter 6 और Chapter 7? भारतीय न्याय संहिता 2023 का कौन सा अध्याय संगठित अपराधों से संबंधित है? अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 या अध्याय 7? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, चैप्टर 6. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अध्याय 6. Chapter 6 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 provides the provisions for organized crimes. The investigations shall be done in accordance with the provisions of Section 107 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, where it allows the trial to be conducted even in the absence of the offenders. भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 6 संगठित अपराधों के लिए प्रावधान से संबंधित है. जांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 107 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, जहां यह अपराधियों की अनुपस्थिति में भी मुकदमे का संचालन करने की अनुमति देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following provisions allows a magistrate to extend the detention period beyond 24 hours? Section 144 of CRPC, Section 58 of BNSS, सेक्शन 167 ऑफ CRPC और सेक्शन 41 ऑफ CRPC. निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मजिस्ट्रेट को 24 घंटे से अधिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की अनुमति देता है? CRPC की धारा 144, BNSS की धारा 58, CRPC की धारा 167 या CRPC की धारा 41? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सेक्शन 58 ऑफ BNSS. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, BNSS की धारा 58. Recently in the Srimati T. Ramadevi, wife of T. Srinivas Gaud versus the state of Telangana, represented by its principal secretary and others case, the Telangana High Court held that Section 57 of the CRPC mandates production within 24 hours from apprehension. This section corresponds to Section 58 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. हाल ही में श्रीमती टी रामादेवी पत्नी टी श्रीनिवास गौड़ बनाम तेलंगाना राज्य मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कहा कि CRPC की धारा 57 के तहत गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पेशी अनिवार्य है. यह धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 58 के समकक्ष है. Next question. Which earlier section of the CRPC is now covered under Section 528 of the BNSS? Section 432, Section 482, Section 161 और Section 151? CRPC की पहले की कौन सी धारा अब BNSS की धारा 528 के तहत शामिल है? धारा 432, धारा 482, धारा 161, धारा 151? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सेक्शन 482. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 482.
Recently, the Supreme Court in the matter of K. Bharti Devi and others versus State of Telangana and others has held that criminal cases having civil nature should be quashed when the dispute between the parties is settled. Section 528 of BNSS corresponds to the earlier Section 482 of the CRPC dealing with the inherent powers of the High Court. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने के भारती देवी और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य मामले में यह कहा कि नागरिक स्वभाव से आपराधिक मामलों को तब खारिज किया जाना चाहिए जब पार्टियों के बीच विवाद निपट जाता है। बीएनएसएस की धारा 528 सीआरपीसी की पूर्व धारा 482 के समकक्ष है, जो उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sections of the Chhattisgarh Rent Control Act 2011 defines habitual defaulter? Section 2 Clause 1, Section 2 Clause 3, Section 2 Clause 4 और Section 2 Clause 5? छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की कौन सी धारा आदतन डिफॉल्टर को परिभाषित करती है? धारा 2(1), धारा 2(3), धारा 2(4) या धारा 2(5? The correct answer for this question is option C, Section 2 Clause 4. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 2(4). As per the Section 2 Clause 4 of the Chhattisgarh Rent Control Act 2011, habitual defaulter means a tenant who fails in a period of 12 months on 3 or more occasions to pay in full the rent and all dues to the landlord on the due date in accordance with the agreement. छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 2(4) के अनुसार आदतन डिफॉल्टर का अर्थ है कि वह किराएदार जो 12 महीने के भीतर 3 या अधिक मौकों पर पूरी तरह से किराया और सभी बकाया राशि समय पर मालिक को नहीं चुकाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। द रेंट कंट्रोलर शेल बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिप्टी कलेक्टर और सिविल जज। किराया नियंत्रक का रैंक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए? तहसीलदार, सहायक अधीक्षक, डिप्टी कलेक्टर या सिविल जज? सेंड अस द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।